Hello students, today again you are here with me Deepika, your science teacher. How are you all? I am hoping that you all are safe and fine. We were discussing about the chapter 5 acids, bases and salts. Today also we will continue the chapter. Till now we have discussed about acids, bases and indicators in detail. So our today's topic is neutralization reaction. So first of all, we should know about the meaning of neutralization reactions. So what are neutralization reactions? Neutralization reactions are those reactions in which acids mix with bases, or we can say bases mix with an acid to form salts, water, and in this process a large amount of heat is also produced. Always and always neutralization reactions are occurring with the evolution of heat. In neutralization always heat will produced. So yes, here I have taken one example. You can take any acid or any base reaction. The basic reaction remains the same. I have taken dilute hydrochloric acid along with dilute sodium hydroxide. So when we are mixing dilute hydrochloric acid with dilute sodium hydroxide solution, then they will form a salt named as sodium chloride, which we are using as common salt at our home. जो हमारे घरों में नमक होता है वो NaCl ही होता है. So yes, it will form a salt along with the production of water, and in this process heat will evolve. So yes, this reaction is known as neutralization reaction. Now we are having one activity in our book, that is to study a neutralization reaction. How can we study a neutralization reaction? So for this we have to use some of the things. What is the procedure here? Here I am having one test tube whose solution color is pink because I have added 5 milliliter of dilute sodium hydroxide solution, and in this 2 drops of phenolphthalein is present. Okay, 5 milliliter of sodium hydroxide solution and 2 drops of phenolphthalein is present. So what should the color? Phenolphthalein is colorless in acid but it gives pink color in base. That's why the solution color is pink right now. यहाँ पे पिंक कलर क्यों है सॉल्यूशन का? बिकॉज ऑफ दिस फिनोल्फेथलीन. फिनोल्फेथलीन बेस सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है? पिंक कलर. तो इसलिए यहाँ पे पिंक कलर है. फिर हमने क्या किया? इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में ऐड करना स्टार्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज. हमने क्या किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने ड्रॉप वाइज उस टेस्ट ट्यूब में डालना स्टार्ट किया और टेस्ट ट्यूब को कंटिन्यूसली शेक करते रहेंगे. शेक करने से क्या होगा कि वो मिक्स होता जाएगा. ठीक है, हम तब तक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालने का क्या मतलब है? ताकि हमें कलर चेंज उसी मोमेंट में पता चले, इसलिए हम एकदम से नहीं डालते हैं. ठीक है, तो यस, हम तब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तब तक कि वो कलरलेस ना हो जाए, जस्ट कलरलेस ना हो जाए. ठीक है, उस टाइम पे क्या है? नाउ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, जब जस्ट कलरलेस हुआ है. उसके बाद हम 2-3 ड्रॉप्स और डालेंगे इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर एसिड की. तब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नाउ इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर. ओके, इनिशियली इट वाज बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ वी आर एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू न्यूट्रलाइज इट और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस. तब वो बेसिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा. लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 ड्रॉप्स एसिड की और डाल दी, तो यानी कि नाउ द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक इन नेचर एंड कलरलेस बिकॉज फिनोल्फेथलीन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी आर एडिंग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेन till the solution becomes pink in color. Pink means the solution is now basic in nature. So yes, this is the method which we are going to do again and again, repeatedly doing this experiment to find the neutralization reaction. So observations are pink color become colorless and then colorless solution becomes pink in color again. So these are the observations in this experiment. So what can we conclude after this reaction? तो yes, we can conclude. हमारा conclusion क्या होगा? Yes, when an acid reacts with a base, it will neutralize the reaction and it will show neutralization reaction. So this is a neutralization reaction.
when an acid reacts with base, or we can say when a base reacts with an acid, it will form salts and water. And when we will touch this test tube, observation में एक और चीज आएगी, when we will touch this test tube तो हमें वो गर्म दिखेगी. क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है. जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होता है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. As this is an exothermic reaction, that's why the test tube become hot when we touch during the experiment. So this is a neutralization reaction. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमारे पास न्यूट्रल जो सोल्ट होता है उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज आती हैं, ध्यान दें. सो यस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट? हमने किया था एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर. Some of the bases can dissolve in water, not all bases can dissolve in water, but salts can dissolve in water. Salts पानी में dissolve हो सकते हैं, and dissolve होने के बाद ये dissociate हो जाते हैं, ions बनाते हैं. ये कैसे बनाते हैं अभी मैं नहीं समझाऊंगी, अभी आप बहुत छोटे हो. तो ये ions बनाते हैं. Because of presence of these ions, it can conduct electricity. Yes, salts can dissolve in water and they can conduct electricity in solution form. Next is salts are having high melting and boiling point. Yes, salts की जो melting और boiling point होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये बहुत easily melt नहीं हो सकता, बहुत easily बॉयल नहीं हो सकता, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. एंड सोल्ट्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ये हमारे पास जनरली सॉलिड स्टेट में मिलता है. कोई एग्जांपल अगर हम इसका देखने लगे तो यस, इट कैन बी कॉपर सल्फेट एंड इट कैन बी फेरस सल्फेट. So yes, copper sulfate is generally white in color and ferrous sulfate is generally green in color. So these are found in सॉलिड स्टेट. ये पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है. तो सोल्ट और जो नमक की मैंने यहाँ पे बात की थी जो हमारे घरों में होता है, ये भी तो पाउडर फॉर्म में ही होता है, सॉलिड स्टेट में होता है. सो सोल्ट्स आर सॉलिड इन नेचर. ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली मेल्ट नहीं हो सकते, बॉइल नहीं हो सकते. दे डिजोल्व इन वाटर. ये पानी में बहुत इजीली डिजोल्व हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because of presence of these ions in the water. Yes students, our next type of topic is neutralization is in everyday life. Yes, how the neutralization process is going on in our daily routine life. So one by one we are going to discuss all these cases. First one is indigestion. Digestion means digestion होना, खाने का पचना, और डाइजेस्ट होना मीन्स ब्रेक डाउन होना स्मॉल पार्टिकल में. दिस डाइजेशन प्रोसेस वी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर सेकंड चैप्टर. ठीक है. इनडाइजेशन मीन्स डाइजेशन ना होना. ठीक है. समटाइम्स क्या होता है कि वी आर ईटिंग सो मच ऑफ फास्ट फूड, वी आर ईटिंग सो मच ऑफ आउटसाइड फूड. कभी कभी क्या है कि हम बहुत ज्यादा उटपटांग खाना खाते हैं, और समटाइम्स वी आर डूइंग ओवर ईटिंग. तो उसमें क्या है कि टू मच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक. आप लोगों को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. तो वो टू मच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन फील होती है और बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है. तो यस, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक एंटासिड्स. एंट मीन्स अपोजिट, एसिड मीन्स एसिड की, एंट मीन्स ऑपोजिट. तो यस, एंटासिड क्या करते हैं? उस एसिड का अपोजिट इफेक्ट करते हैं और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है. व्हेन टू मच एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी कैन टेक एंटासिड व्हिच विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ एन एसिड्स. These antacids can be milk of magnesia, that is magnesium hydroxide, or it can be baking soda like NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. So these kind of substances we can take. So yes, baking soda तो generally it's present in at our homes.
तो we can take side by side or we can take NO2. It is also basic in nature and nullify the effect of an acid. Okay. Now next is soil treatment. Actually for our crop production we need soil, and for the crop production the soil pH should be neutral, not too much acidic, not too much basic. हमारी जो फसल है, हमारी जो क्रॉप है वो तभी ग्रो कर सकती है अगर सोइल का जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही न्यूट्रल हो, बस बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सम हाउ व्हेन वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या है, फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, कई बार हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, देन द सॉइल बिकम एसिडिक इन नेचर। तो देन व्हाट वी कैन डू टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड, वी कैन ऐड क्विकलाइन that is calcium oxide, or we can use slaked-lime that is calcium hydroxide to nullify the effect of acid. अगर हमारी सोइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है किसी भी वजह से, हमने फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर लिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड ज्यादा यूज कर लिया, तो एसिड में तो हमारी क्रॉप तो प्रोड्यूस कर नहीं पाएगी, तो हमें इसके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। Next we are having, if sometimes we are our soil become too much basic in nature, अगर हमारी सोइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई देन हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। देन वी हैव टू ऐड ऑर्गेनिक मैटर। आपने किया है कि ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो मैन्योर्स की फॉर्म में हम दे सकते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर काउ डंग्स वगैरह की फॉर्म में हम दे सकते हैं। सो दिस विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा बेसिक कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। तो इस तरह से हम सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। ओके, नाउ वी आर हैविंग एंट एंड बी स्टिंग। समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन एंट बाइट्स अस, एकदम से हमें जलन हो जाती है, हम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यस, व्हाई इट इज सो, बिकॉज इन एंट एंड बी स्टिंग formic acid is present. They inject formic acid. Formic is an acid only. तो yes, this acid in our skin when they bite us. ठीक है, अब हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एसिड आ गया है जो अनवांटेड एसिड है, और एसिड का तो इफेक्ट वैसे भी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये हमें इफेक्ट करता है, स्किन को बर्न करता है। तो यस, बेसिकली ant and bee sting are having formic acid which will inject in our body when they bite us. So how can we nullify this effect? We can nullify this formic acid effect by rubbing the part with the baking soda because it is easily available at our home. तो हम साथ के साथ बेकिंग सोडा को फटाफट से हल्के से पानी में पेस्ट बनाएंगे और उसको फटाफट से उस पार्ट पे रब कर लेंगे जहां पर भी एंट या बी ने हमें बाइट किया है। इसके अलावा वी कैन यूज केलेमाइन सॉल्यूशन जो हमें मार्केट से बहुत इजीली मिल जाता है, विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो यस, हम ये भी यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई भी बेसिक सब्सटेंस जो आपके पास उस टाइम पे प्रेजेंट है, आप उनको यूज कर सकते हो। इट विल नलिफाई, और नलिफाई का मतलब है कैंसिल आउट। It will cancel out the effect of acid which is injected in our body because of their bite. Okay. Last one is factory waste. Okay, factories are important for production of many of the things. Without factories we can't survive. So factories are necessity of today's life. हम factories को तो नहीं छोड़ सकते हैं, but how can we overcome the waste produced by the factories will not harm to our environment. जो भी फैक्ट्रीज वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, हम उस पर तो काम कर सकते हैं। बेसिकली जनरली फैक्ट्रीज वेस्ट आर हैविंग एसिड इन इट। तो फर्स्ट इफ वी वांट टू pour it in some of the वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, रिवर, किसी भी तरह लेक, किसी भी अगर हम बॉडी में उसको थ्रो करने वाले हैं तो क्या होगा, वो एसिड वहाँ के पूरे पानी को एसिडिक कर देगा, और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी फिशेज, इट कैन बी प्लांट्स, इट कैन बी फ्रॉग्स, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वो सब मर जाएंगे, उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, एसिड में वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो यस, बेसिकली क्या है कि एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो एक्वेटिक लाइफ सफर ना करे, देन वी हैव टू treat the waste produced by the factory with the basic substances to neutralize it.
जो भी एसिड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसको फेंकने से पहले हम उसको बेसिक ट्रीटमेंट दे दें ताकि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर दे रिएक्शन और अल्टीमेटली जो है वो वेस्ट हमारी रिवर बॉडीज को या एक्वेटिक लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। तो इन दिस मैनर वी आर गोइंग थ्रू दीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑन द डेली बेसिस, हम अपने आसपास देखते हैं। एक वर्ड आपने कभी सुना होगा दैट इज एसिड रेन। अगर आपने कभी सुना है कि यस द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज एसिडिक, तो उसमें कभी भी नहाना नहीं चाहिए। ये इस तरह का बहुत बार आता है कि आपको अगर आप अगर कभी भी बारिश हुई है, अगर आप बाई चांस उसमें गीले हो गए हो तो आपकी पूरी बॉडी पे इरिटेशन होने लग जाती है। क्यों? बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। फर्स्ट रेन इज ऑलवेज एसिडिक, उसके बाद वाली रेन्स भी एसिडिक हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एसिडिक हो, एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो एक्चुअली एसिड रेन रेन इज नॉर्मली रेन, जो बारिश होती है उसको हम रेन बोलते हैं। बट वेन द रेन वाटर कंटेन्स एसिड इन इट इज नोन एज एसिड रेन। तो जनरली आजकल इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, इतना हमारे आसपास में व्हीकल्स चलते हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और भी कई तरह से हमारे पास जला देते हैं कुछ कहीं कहीं पे, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वो जो एयर में मिक्स हो जाता है। इस पोल्यूशन में क्या क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पॉल्यूटेंट्स मतलब द सब्सटेंसेस विच कोज द पोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन कोज करते हैं। इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट कैन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे एयर में मिल जाते हैं। तो जब व्हेन द रेन कम इट मिक्स विद ऑल दीज पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑलरेडी इन द एयर। तो ये सारे के सारे इन कंपोनेंट्स के साथ मिक्स कर जाती है और द रेन बिकम एसिडिक इन नेचर। पहले तो रेन नॉर्मल ही थी, लेकिन ये पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है पोल्यूशन की वजह से, तो ये रेन वाटर जब इनमें मिक्स हो जाता है तो इनको चेंज कर देता है कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं। तो यस, अब ये क्या है कि पहले ऊपर रेन थी, अब वो मिक्स हो गई इन सब सब्सटेंसेस से। अब जो नीचे रेन आएगी अब वो नॉर्मल वाटर नहीं बचा है, अब वो एसिडिक वाटर हो गया है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ एसिडिक रेन। ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक रेन है जो हमारे स्किन पे आके स्किन बर्न कर देती है, स्किन इरिटेशन कर देती है। इसके अलावा और क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में? यस, क्या क्या कर सकती है? एक तो स्किन इरिटेशन मैंने आपको बताया ही है, स्किन को खराब करने में काम करती है स्किन इरिटेशन। इसके अलावा इट कैन कोरोड द बिल्डिंग्स। ताजमहल खराब हो रहा है, सुना है? ताजमहल ब्लैक कलर का होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोजन क्रिएटेड बाय द एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो कोरोजन करती है, जो ताजमहल के ऊपर या किसी भी बिल्डिंग को उसके ऊपर आती है तो उसके मार्बल को, उसके कोई भी मेटल से जिससे भी वो बना हुआ उसको इफेक्ट करती है, उसको कोरोड करती है और अल्टीमेटली खराब कर देती है। ठीक है, सो यस, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो स्किन इरिटेशन करता है। इसके अलावा वो बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है, और हमने क्या किया है कि ये सॉइल को एसिडिक कर देता है। ठीक है, सॉइल को एसिडिक कर देता है। ऑब्वियसली अब जो ये एसिडिक वाटर सॉइल में जाएगा तो सॉइल को भी तो एसिडिक करेगा, तो सॉइल एसिडिक होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी क्रॉप्स को, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। So yes, this is about the acid rain and this is about this chapter. In this chapter we had studied in detail about the acids, bases, indicators and neutralization reaction or neutral substances. So yes, I am hoping that your concept regarding all these things are very much clear. I will show you a small clip regarding the acid rain now. Enjoy the video and this is all about for this video. Thank you.